Hello students, in our previous video we have seen two modes of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic nutrition, it is the mode in which living organisms they can make their own food. जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बना सकते उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो हमने देखा था कि ऑटोट्रॉप्स कौन है या कौन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। दे आर द प्लांट्स। प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज मीन्स टू प्रोड्यूस, बनाना। ओके, सो in this video we are going to see the process of making the food कि जिस प्रोसेस से प्लांट्स खुद का फूड जो है तो खुद बना सकते हैं। इट इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स light. Photo means light and synthesis means to make. So what is photosynthesis? To make by using light. So plants यहाँ पे क्या बना रहे हैं? Food. So to make food by using light. Light का use करके. It is photosynthesis. Okay. The term photosynthesis it was first proposed by Charles Reid Barrett, the scientist चार्ल्स रेड बैरेट। उन्होंने फोटोसिंथेसिस जो है तो फर्स्टली वो बताया था, उसकी प्रोसेस जो है तो उन्होंने फर्स्ट फोटोसिंथेसिस टर्म जो है तो वो हमें बताई थी। सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which plants can make their own food with the help of carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Okay, so the process by which plants can make their own food. ये क्या है फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स खुद का फूड जो है खुद बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट। वो कैसे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके एंड सनलाइट को यूज करके एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। So it is the definition of photosynthesis, the process by which plants can make their own food, जिसमें plants खुद का food खुद बना सकते हैं with the help of carbon dioxide and water by using carbon dioxide water plus sunlight in presence of chlorophyll is called photosynthesis. Okay, so photosynthesis ये जो process है ये करने के लिए plants को कुछ चीज़ें चाहिए होती है। देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स विच प्लांट्स नीड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी विल सी दैट रिक्वायरमेंट्स।
requirements of photosynthesis. Okay, so there are 4 requirements for the process of photosynthesis. First is water and minerals. The second one is carbon dioxide. Then chlorophyll, and last one is sunlight. Okay, these are the 4 requirements which plants need for photosynthesis. photosynthesis के लिए ये 4 चीजें जो है तो वो नेसेसरी है. फर्स्ट वाटर एंड मिनरल्स. सो as you know, plants they absorb water from the soil with the help of roots. plants क्या करते हैं, जो plants की roots है, these are the roots of plants. So plants they absorb all the nutrients, all the water, minerals from these roots, and then they transport these water minerals to the other parts of the plants. And हमारी photosynthesis की process कहाँ पे होने वाली है? The process of photosynthesis will be carried out in the leaves of plant. Leaves जो रहते plants के, तो वहाँ पे photosynthesis की process होगी. So plants they absorb water and minerals from soil by the roots with the help of roots, and then the water and minerals are transported to upper side, other parts of the plants, to the stem, to leaves, flowers, जो भी plants के parts है तो उनको वो transport करते हैं. And this transportation occurs with the help of xylem vessels. जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स रहते ना, कि जो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो वैसे ही प्लांट्स में भी रहते हैं. लाइक अ पाइपलाइन, जैसे पाइपलाइन रहता वाटर को पास करता, तो वैसे ही प्लांट्स में भी वैसे ही पाइपलाइंस रहती, वेसल्स रहते, उनको बोलते हैं xylem vessels. दे आर कॉल्ड xylem vessels. सो विद द हेल्प ऑफ दिस xylem vessels, plants transport all these water and minerals to the other parts of the plants. So the first requirement कैसे आती हुई, plants कैसे absorb करते हैं? with the help of roots. और फिर उसको transport कौन करता, दूसरे parts तक कौन पहुंचाता? xylem vessels which are present in the plant like a pipelines. Second thing which is necessary for photosynthesis is carbon dioxide. So carbon dioxide, you all know that carbon dioxide is present in atmosphere. atmosphere में carbon dioxide present है, तो वो जो atmosphere में carbon dioxide है air में, तो वो plants क्या करके उसको absorb करते हैं. जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं respiration through, तो वैसे ही plants carbon dioxide को inside the body लेते हैं, inside the cells लेते हैं. तो वो कैसे लेते हैं? जैसे हम nose से लेते हैं ऑक्सीजन inside the body. ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोज एंड अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो प्लांट्स के पास तो नोज नहीं है, तो वो कैसे लेते हैं? उनके पास एक टिश्यू है कॉल्ड स्टोमेटा. दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. सो ये जो स्टोमेटा है तो वो क्या है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. लीव्स जो है तो लीव्स के अंडर साइड में एक छोटे छोटे पोर्स रहते, छेद रहते, तो उससे प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड दैट पोर्स दे आर कॉल्ड स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन एंड क्लोज होते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना है तो वो ओपन हो सकते हैं, एंड जब एब्जॉर्ब करना नहीं है तो वो क्लोज रहते हैं. And वो opening and closing it is controlled by guard स्टोमेटा के अराउंड ये जो है तो
वो है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स दे कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड दिस स्टोमेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द photosynthesis. Now next one is chlorophyll. Okay, so chlorophyll it is a pigment. What is pigment? And chlorophyll it is a green color pigment. chlorophyll क्या है? एक green color का pigment है. Pigment means chemicals, like a chemicals. So but they are the living organisms chemical, जो मतलब biological chemicals है. So green color का एक pigment है जैसे liquid. So वो कहाँ पे present है? हमारे cells, मतलब plants के cells में रहता, in the organic chloroplast. Okay, this green color pigment chlorophyll is present in the क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल. सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स रहते हैं, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन से बहुत सारे, वैसे हमारे सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिल्स रहते हैं. तो उनमें से ही एक है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स जो है तो उनमें प्रेजेंट है, और जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल. और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन दिखता है. जैसे अदर एनिमल्स वो ग्रीन नहीं रहते, या हम ह्यूमन बीइंग्स ग्रीन कलर के नहीं दिखते. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, एंड प्लांट्स के बॉडी में, प्लांट्स के सेल्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता, इसीलिए दे अपीयर अ ग्रीन इन कलर. सो ये क्लोरोफिल क्यों चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? बिकॉज why we need this chlorophyll for the photosynthesis? Because it absorb and store sunlight. जो भी sunlight plants पे आती है, so that sunlight is absorbed by the chlorophyll, and it stored that sunlight for the process of photosynthesis. Now the last one is sunlight. So you all know that sun it is the ultimate source of energy for us. sun से ही हमें एनर्जी मिलती है. it is the only one source of energy. but ये जो एनर्जी है हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट्स करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस करते एंड फूड बनाते. वैसे हम नहीं कर सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट फॉर द फूड. सो दिस सनलाइट इट हेल्प्स प्लांट टू सिंथेसाइज देयर फूड. तो कैसे? जैसे सन से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सनलाइट, सॉरी सोलर एनर्जी. सो द एनर्जी विच वी टेक फ्रॉम सन इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सन से जो एनर्जी मिलती है इट इज सोलर एनर्जी, and this solar energy is converted into chemical energy by the plants. plants क्या करते हैं? इस solar energy को convert करते हैं in the chemical energy, and this chemical energy is food. means solar energy is converted into food in the process of photosynthesis, and by the use of water, minerals and carbon dioxide. Okay, so these are the 4 requirements which we need for the process of photosynthesis. water and minerals ये plants कैसे लेते हैं? from the soil and with the help of roots. roots के help से वो लेते हैं, and फिर xylem tissue के help से वो पूरे plant में transport करते हैं. then carbon dioxide वो कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा से. स्टोमेटा क्या है? small pores present on the leaves. then chlorophyll is present in the chloroplast of the cell, and वो क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है. and then sunlight is absorbed by the chlorophyll.
ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द रिएक्शन क्या होती है. ओके, okay, so now the process of photosynthesis, what is the process? So we know the first requirement we need is CO2, means carbon dioxide. Okay, carbon dioxide is denoted as CO2. Then we need H2O, means water. The formula for water is H2O. So दो तो मिल गए हमें, CO2 and H2O. Now हमें क्या चाहिए, सनलाइट. ओके, सनलाइट. Then by using CO2, carbon dioxide and water in the presence of sunlight, plants make carbohydrate plus oxygen. So ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. अभी आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, क्योंकि हमें तो फूड बनाना था. तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड, एंड फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो फूड बनाते वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो स्टोर करके रखते. द plants make food in the process of photosynthesis is stored as a carbohydrate. तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं. तो इसीलिए हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा. एंड इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं. आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. फिर वही ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं. सो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है तो वो रिलीज होता है. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप आपको समझ में आएगा.